नमस्कार, मैं विशाल। दिन भर की राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के साथ खबर समय की खास पेशकश पॉलिटिकल बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। 15 सूत्री मांगों के समर्थन में गुरुवार को उत्तर बंगाल के खुरसिल समिति की ओर से उत्तर कन्या अभियान का आयोजन किया गया, जिसे ध्यान में रखते हुए नौका घाट मोड़ से एक रैली भी निकाली गई। तीनबत्ती मोड़ पर पुलिस ने उस रैली को रोक दिया। मुख्यमंत्री तक उनकी मांगों को पहुंचाने के लिए 7 लोगों का एक प्रतिनिधि दल जाकर उत्तर कन्या में मुख्य सचिव को एक ज्ञापन भी सौंपा। যাবে বাপি? হ্যাঁ, প্রথমে আপনার নাম বলেন আর পরিচয় বলেন, আপনার সংগঠনে কি পোস্টে আছেন বলেন। আমি অজিত শীল, দার্জিলিং জেলা নরসুন্দর সমিতি প্রেসিডেন্ট ও উত্তরবঙ্গ কৌরকার শিল সমন্বয় সমিতির সদস্য। এদিকে তাকিয়ে বলেন, এদিকে তাকিয়ে, আমার দিকে। ওই কি কর্মসূচি রয়েছে আপনাদের আজকে? আমাদের আজ 15 দফা দাবি নিয়ে উত্তরবঙ্গে উত্তরকন্যায় একটা ডেপুটেশন আছে। এই নিয়েই আজকে আমরা উত্তরকন্যা অভিযান রাখছি। কি কি দাবি রয়েছে মূলত? তার মধ্যে বিশেষ দাবি হচ্ছে আমাদের উত্তরবঙ্গের নাপিত পরিষদ উন্নয়ন পরিষদ গঠন করতে হবে ও নাপিতদের অবিলম্বে ওবিসি প্রদান করতে হবে। ঠাকুর পদবী নাপিতদের ওবিসি প্রদান করতে হবে। ওবিসি শংসাপত্র প্রদানে হয়রানি বন্ধ করতে হবে। গরিব ক্ষৌরকারদের কাজের সরঞ্জাম অনুদান দিতে হবে। ক্ষৌরকারদের রূপশিল্প হিসাবে ঘোষণা করতে হবে। ক্ষৌরকর্মীদের সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ প্রদান করতে হবে। আপনারা একটা দাবি ওখানে মূলত করেছেন যে আপনাদেরকে 10,000 টাকা ভাতা দিতে হবে। হ্যাঁ, কেন হঠাৎ করে এই দাবিটা? এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার সরকারিভাবে যে লকডাউন ঘোষণা করেন, সেই লকডাউনের 4 মাস আমরা কর্মহীন অবস্থায় ছিলাম। সেই সময় আমরা রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনেক লেখালেখি যোগাযোগ করি, কিন্তু সেখানে আমাদের কোনো সমস্যার সমাধান হয়নি। সেই মতো অবস্থায় আমরা দিন গুর্জান করেছি। যেরকম কারোর ঘরের সোনা গয়না হাড়ি কড়াই বিক্রি করেও আমাদেরকে সংসার চালাতে হয়েছে। এমনকি মহাজনের থেকে চড়া সুদের টাকা নিয়েও আমাদের সংসার পরিচালনা করতে হয়েছে। তাই আমরা রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা দাবি রাখছি, আমরা অনুরোধ করছি যে আমাদের সেই 4 মাস যে লকডাউন ছিল, সেই সময়ের জন্য আমাদের এককালীন 30,000 টাকা, প্রতি মাসে 10,000 টাকা, যে 30,000 টাকা আমাদের অনুদান দিতে হবে এককালীন। আর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও আমরা দাবি রাখছি, কেন্দ্রীয় সরকারও আমাদেরকে অনুদান দিবেন এককালীন 30,000 টাকা দিবেন, মাসে 10,000 টাকা করে। তার কারণ আজকে কেন্দ্রীয় সরকার, আমাদের যে কেন্দ্রীয় সরকারের যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, উনিও আজকে দেখবেন, আপনারা লক্ষ্য করবেন যে উনিও চুল দাড়ি কাটা বন্ধ করে দিচ্ছেন। ওনার দেখা দেখি বা এইরকম ভয়ে, যেমন উনি ভীতু, এরকম অনেক আমাদের খরিদ্দার আছে যারা নাকি ভয় পান, সেলুনে আসতে ভয় পান। তারা বাড়িতেই টিউমার কিনে নিয়ে চুল দাড়ি বানাচ্ছে। তো এই মতো অবস্থায় আমাদের ব্যবসার আমাদের খুবই ক্ষতিগ্রস্ত আমরা।
তাই আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা আবেদন রাখছি যে এককালীন আমাদেরকে 30,000 টাকা প্রতি মাসে 10,000 টাকা এককালীন 30,000 টাকা আমাদেরকে অনুদান দেওয়া হোক। सिलीगुड़ी में आकर केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राज्य सरकार पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राज्य की एजेंसी केंद्र के किसी भी काम को करना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि बंगाल के पर्यटन मंत्री केंद्र द्वारा बुलाए गए बैठक में शामिल नहीं होते। भाजपा का उद्देश्य बंगाल का पुराना ऐश्वर्य लौटाना है। गुरुवार को भाजपा कार्यालय जयमुनि भवन में एक पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से उन्होंने यह बात कही। आज उन्होंने भाजपा के रैली में मारे गए उलन राय के परिवार के साथ भी मुलाकात किया। नॉर्थ बंगाल की जनता से यही प्रार्थना करूंगा कि आपने तो अपना फैसला सुना दिया। आने वाले 4 माह के बाद जब चुनाव होंगे तो हमें आपका आशीर्वाद भी चाहिए, हमें आपका सहयोग भी चाहिए और हमें आपका वोट भी चाहिए। अन्याय का प्रतिकार करते करते हम विजय के मार्ग की तरफ प्रशस्त कर रहे हैं, ऐसा मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं। जो मेरा राजनीतिक अनुभव है उसके आधार पर मैं स्पष्ट जीत देखता हूं कि भाजपा 200 पार। मुझे इस समय पर इतनी ही बात कहनी है। अगर कोई प्रश्न आपको पूछना तो आप पूछ सकते हैं। What about the state tourism? You are the central tourism minister. What about the state tourism? क्या हुआ है यार? टूरिज्म किस परिप्रेक्ष्य पे पूछ रहे हैं? टूरिज्म डिपार्टमेंट ने क्या काम किया वेस्ट बंगाल में, क्या लगता है? वेस्ट बंगाल में तो काम कुछ होता नहीं है। पैसा देते हैं, हमने 2015-16 में दिए, 16-17 में दिए, खर्च ही नहीं होते। और उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि कभी बेलूर मठ जाइए, पर बाद में हमने कहा कि रामकृष्ण मिशन ही इस काम को पूरा करे, तब वो पूरा होने की स्थिति में है। विवेकानंद जी की जन्मस्थली में पैसा दिया गया संस्कृति मंत्रालय की तरफ से, वो काम आज तक पूरा नहीं किया। तो मुझे लगता है कि स्टेट एजेंसी सेंट्रल के किसी काम को करना नहीं चाहती, ये मेरा आरोप है। सर, नॉर्थ बंगाल के लिए कौन सा प्रोजेक्ट में पैसा दिया गया था जो कि खर्चा नहीं हुआ, आपका मानना है? नॉर्थ बंगाल के लिए टूरिज्म का कौन सा प्रोजेक्ट में जो पैसा दिया गया था खर्चा नहीं हुआ, आपका नहीं दिया ही नहीं, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट आया ही नहीं, तो पैसा जाने का सवाल नहीं है। लेकिन दार्जिलिंग में जो बुद्धिस्ट साइट है उस पर पैसा गया। एक आपका कूच बिहार का जो पैलेस था उसके बारे में, तो उसमें ज़मीन में विवाद है। 100 एकड़ की ज़मीन में कुछ स्टेट ने ज़मीन ले ली है, बाकी ASI के पास में है। तो कुल मिलाकर सुरक्षा के मामले में और बाकी मामले में कोई सहयोग नहीं है। लेकिन ये सच है कि कूच बिहार हो, चाहे अभी हमने राजपाट के टीले पर भी मैं गया था, 400 साल पुराने मंदिर हैं उसी एक ही काल के, जिसमें 3 में मैं देख कर आया, वो सारे स्टेट के पास है। और उनकी जो हालत है आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता है। यहाँ का विधायक जो है गौतम देव वो स्टेट पर्यटन मंत्री है, तो उनका तो कहना है, ये कहते रहते हैं कि केंद्र से अर्थात आपकी तरफ से कोई भी इसको फंड नहीं मिलता है। मुझे लगता है मैं इसके लिए डिबेट पर तैयार हूँ। उनसे कहिए कि स्वदेश दर्शन और प्रसाद 2 ही स्कीम है, कहने आपने कौन सी पूरी की है। मैं आपके माध्यम से उनसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो परियोजना योजना आपको दी गई, अगर आपने पूरी की हो तो जवाब दीजिए। आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? रणनीति रहेगी कि उत्तर बंगाल को अपना खोया हुआ ऐश्वर्य प्राप्त हो। और मैं मानता हूं कि पर्यटन की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जैसे कूच बिहार की हवाई पट्टी सिर्फ राज्य सरकार ने सुरक्षा नहीं दी, इसलिए वो ऑपरेट नहीं हो पाई, अन्यथा हवाई पट्टी है। तो जो यहाँ पर ऐसे कोई छोटे हवाई जहाज चलेंगे तो उसमें अगर गैप फंडिंग की जरूरत पड़ेगी तो स्कीम है पर्यटन मंत्रालय की, हम उसका उपयोग करेंगे। उस पर हमने अभी काम करना शुरू किया है, तो परिणाम आएंगे तो आपको बताएंगे। सर, लॉकडाउन के चलते यहाँ का टूरिज्म का तो हाल बहुत बेहाल हो गया, ये मानना है टूरिज्म का जो बिजनेस है पूरे दुनिया का, कहिए यहाँ का नहीं, पूरी दुनिया का। उनके लिए कोई कुछ है लगातार जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे होटलियर हों, चाहे टूर एंड ट्रेवलर्स हों, चाहे गाइड्स हो, उन सब के ऑर्गेनाइजेशन से लगातार बात होती रही है। और मुझे लगता है कि अभी तक इतने लंबे नुकसान के बावजूद भी इंडस्ट्री का नकारात्मक न होने के पीछे कारण है कि सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में हर कदम पर, जब भी परिस्थिति आई है कि मॉनिटरियम देना है या बाकी चीज़ें करनी है, नियमों में रिलैक्सेशन करना है, वो हमने किए। और इस बीच में एक और हमने बेहतर काम किया है
कि अभी तक हमारे पास में कोरोना के पहले कुल 1400 होटल्स का रजिस्ट्रेशन था, आज की तारीख में वो 33,000 के आसपास हो गया है। और दूसरा SOP के लिए इसको निधि पोर्टल का ऐप है। दूसरा है साथी, जो होटल स्वयं अपना डिक्लेरेशन दें कि हम SOP लागू कर रहे हैं तो वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें कोई भी अफसरशाही कहीं नहीं है, ना निधि में और ना साथी में। और जो पर्यटन मंत्री हैं, जब मैंने पर्यटन मंत्रियों की बैठक बुलाई थी तो पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश भर के पर्यटन मंत्री उस बैठक में थे, जबकि वो वर्चुअल थी। तो ये भी आप उनसे पूछ सकते हैं जो मैंने कहा है कि जब बैठ के केंद्रीय मंत्री बुलाता है तब तो आप नदारत रहते हैं और यहाँ पर आप कुछ और कहते हैं। पटेल जी वो तो बोलता है कि आप लोग तो बाहर से आते हैं चुनाव के लिए, अब चुनाव खत्म चला जाएगा, डेवलपमेंट जो बंगाल में हो रहा है वो तो दीदी कर रही है, तो आप डेवलपमेंट के बारे में आपका कोई कुछ भी नहीं है, तो इलेक्शन के लिए आते हैं। आप पूछ रहे हैं कि उनका उनकी भाषा, दीदी का बात बोल रहा हूँ मैं ये ऐसे बोल रही है। लोकसभा चुनाव में तो हम लोग नहीं थे, हमारे बूथों पर एजेंट भी नहीं थे, सांसद जीते। तो ये आरोप उनको शायद अभी अंकीगणित आ नहीं रहा है। लोकसभा चुनाव में हम कोई नहीं थे, हमारे किसी भी लोकसभा क्षेत्र में 80% से ज़्यादा एजेंट नहीं थे, 20% बिना एजेंट के थे। उसके बाद लोगों ने जिताया, जनता लड़ रही है, वो मुगालते में न रहें। रहा सवाल हमारा, ये भारतीय जनता पार्टी है, जहाँ कोई विधायक, सांसद और मंत्री बाद में होता है, कार्यकर्ता पहले होता है। तो हम लोगों को जो जिम्मेदारी मिलती है वो हम करते हैं। और उनको मैं एक और बात याद दिलाना चाहता हूँ, मैं मणिपुर का प्रभारी भी था। माकपा छात्र संगठन SFI के 50 वर्ष पूर्ति के उपलक्ष्य में 27 से लेकर 29 दिसंबर तक सिलीगुड़ी में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। एक संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से SFI के दार्जिलिंग जिला सचिव शंकर मजुमदार ने कहा कि रोजगार, शिक्षा संबंधी विभिन्न विषयों को लेकर संगठन का आंदोलन जारी है। इस उपलक्ष्य में 27 दिसंबर को रक्तदान शिविर के साथ 29 दिसंबर को शहर में एक रंगारंग रैली का भी SFI की ओर से आयोजन किया जाएगा। 27 থেকে 30 ডিসেম্বর সেই যে ধারা, সেই প্রথম দিন থেকে যে দাবিটা ভারতের ছাত্র ফেডারেশন করে এসেছিল এবং বর্তমান সময় 2020-তে দাঁড়িয়েও সেই একই দাবি যতটা প্রাসঙ্গিক, তার মধ্যে দিয়ে এটা বোঝা যাচ্ছে যে এই সমাজের এই শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। সকলের জন্য শিক্ষা চাই, শিক্ষা শেষে কাজ চাই, এই ভারতের ছাত্র ফেডারেশন দাবি জানিয়ে এসছে। শিক্ষা শেষে সবার হাতে কাজ, সবাই যাতে শিক্ষার সমানাধিকার পায় সেটার দাবিতে। এই সবটাকে সামনে রেখে আমাদের এই 50 বছর পথ চলা, সেই 50 বছর আমাদের পথ চলতে গিয়ে বহু আমাদের ছাত্র কমরেড যারা ছাত্রছাত্রীদের দাবিতে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে গিয়ে শহীদ হয়েছে, সেই সমস্ত শহীদদেরকে স্মরণ করে এবং আমাদের এই 50 বছর পথ চলার যে সমস্ত প্রাক্তনীরা একসময় আমাদের সংগঠনকে, আমাদের সংগঠনের গুরু দায়িত্ব পালন করেছে, আমাদের সংগঠনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে তারা দায়িত্ব পালন করেছে, তাদের সবাইকে আমরা আমাদের এই 50 বছর পূর্তি উপলক্ষে তাদের সবাইকে আমরা এই মিছিলে আমন্ত্রণ জানাই। এর সঙ্গে সঙ্গে যে বিষয়টা খুব জোরালোভাবে বলা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে এই বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে যেভাবে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, একটা দীর্ঘ সময় ধরে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনার পরিবেশ থেকে বাইরে চলে গিয়েছে। তাদের ছোট ছোট বাচ্চা, 5 বছর 10 বছর বাচ্চাদের মোবাইলের সামনে বসিয়ে দেওয়ার যে প্রয়োগ, যে চেষ্টা চলছে এবং সিলেবাসগুলোতে UGC সিলেবাসে সেই 80-20 রেশিওতে যে অনলাইন এডুকেশন, তারপরে ফিজিক্যাল এডুকেশন, এরকম যে বিষয়গুলো রাখা হয়েছে, অনলাইন এডুকেশন ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে কোনোভাবেই সম্ভব না। এর আমরা বিরোধিতা করি এবং भारतीय छात्र फेडरेशन प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी क्रिसमस व नए वर्ष के उपलक्ष्य में सिलीगुड़ी के यरवी मोड़ सहित शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों को लाइटों से सजाया गया है। एक रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से गुरुवार शाम को मंत्री गौतम देव ने यरवी मोड़ पर इसका उद्घाटन किया। इस दौरान लोगों के बीच क्रिसमस के उपलक्ष्य में केक का भी वितरण किया गया। साथ ही मंत्री ने सभी को क्रिसमस की बधाई भी दी। শিলিগুড়ি ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যাল, আজ এই ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যালে বর্ণময় আলোকসজ্জা শিলিগুড়ির বুকে উদ্বোধিত হতে চলেছে। উদ্বোধন করবেন মাননীয় পর্যটন মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গৌতম দেব মহাশয়। সেই সঙ্গে মঞ্চের বিশিষ্ট যারা রয়েছেন তারা এই আলোকসজ্জা উদ্বোধনে অংশগ্রহণ করবেন। এই মুহূর্তে পর্যটন দপ্তরের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট অতিথি অন্ধকার কেটে দিয়ে चांदे चांदे उठे मातिया
চেষ্টা করি। এবছর একটা খুবই গ্লোবি ইয়ার গেল, অ্যাক্রস দি গ্লোব, সারা বিশ্ব আক্রান্ত হয়েছিল ভয়াবহ কোভিড-19 ভাইরাসে, এবং প্রায় সারাটা বছরই আমাদের উদ্বেগ, দুঃখ, কষ্ট এবং জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ সমাজের সর্বস্তরে তার সর্বব্যাপী প্রভাব আপনার পড়েছে। বছরের শেষের দিকে এসে কোভিড এখনো যায়নি, কোভিড-19 ইউকেতে সেটা অন্যভাবে আসছে। আমাদের দেশেও তার প্রকোপ কমলেও এখনও সেটা আছে। আমরা সবাইকে অনুরোধ করব যে স্বাস্থ্যবিধি মানুষ, মাস্ক ব্যবহার করুন, স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন, নিজেকে এবং সমাজকে সুরক্ষিত রাখুন। এই অবস্থার মধ্যেও আমরা জীবনের ছন্দে ফেরার জন্য সবাই চেষ্টা করছেন। একটা অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের জন্য আমরা প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। প্রত্যেক বছরের মধ্যে লাস্ট কয়েক বছর ধরে আমরা এই প্রচেষ্টাটা নিয়েছি। শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন রাজপথ, হিলকাট রোড, সেবক রোডের একটা পার্ট, বিধান মার্কেট, এসএফ রোড, এই রাস্তাগুলো যেগুলো শিলিগুড়ি শহরকে জুড়ে আছে, সেখানে আমরা খুব সুন্দর করে আলোকমালা এবং ক্রিয়েটিভ কিছু কাজের মাধ্যমে আমরা মানুষকে একটা দৃষ্টিনন্দন, একটা সৌন্দর্য উপহার দিতে चेष्टा करेছি। 7 दिसंबर को भाजपा के उत्तर कन्या अभियान के बाद सिलीगुड़ी में भाजपा युवा मोर्चा के 13 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें एक महिला कार्यकर्ता भी शामिल थी। कोर्ट में पेशी के बाद उन 13 लोगों को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जानकारी मिली है कि इस मामले में वापस से आज सिलीगुड़ी कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद गिरफ्तार भाजपा कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया गया। जेल से रिहाई मिलने के बाद ही ढोल नगाड़ों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने युवा कार्यकर्ताओं का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दिन भर खबरों की ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहें खबर समय के साथ। धन्यवाद।